Hello student, this is Dr. Jyoti D. Gulwani with your subject Financial Management. Now today we have to learn about working capital management. First of all, let us understand what is working capital. Here a short description is written about working capital. See, what is working capital? Amount which is required for our daily routine transaction is known as our working capital. Now, which are the daily routine expenses? For example, if a company is purchasing material or if a company is paying different kind of expenses like wages, or if they are providing certain kind of daily breakfast or food to their employees, then this kind of expenses are included in working capital, means daily routine expenses. In the same way, certain amount of cash comes in the business, or we have to deposit certain amount into the bank, or we are purchasing or selling certain kinds of goods, or we are transferring goods from one place to another place. So for this kind of expenses, transportation expenses are required, printing, stationery. So these are the small expenses which is being there in the company for daily routine life. So this kind of expenses are happen in the continuous process of the company. That's why it is known as working capital. And when we are managing this kind of expenses as a manager, then it is known as the working capital management. Now, there are basically two types of working capital. Number one is gross working capital. Number two is net working capital. So, see what is gross working capital. In simple terms, here you can see that is total of current assets. Here directly it is written CA. Gross working capital equals to CA, that is only for cash generation. Means जहाँ से पैसा आता है. Assets are your cash form. कैसे? सपोज इफ फिक्स असेट्स आर देयर, इन्वेस्टमेंट इज देयर, स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग ओनली जनरेट्स कैश. ये सारी चीज़ें आपका कैश ही जनरेट करती हैं. दैट्स वाई ग्रॉस मतलब टोटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स टोटल करंट एसेट्स ओनली विच गिव्स यू कैश. तो हियर यू कैन से दैट ओनली फॉर कैश जनरेशन, that is known as your gross working capital. What is net working capital? So see here you can see that one formula is written in short, that is current assets minus current liability. Simple formula of working capital is current assets minus current liability. Only if you know what are the current assets and what are the current liabilities, then easily you can calculate the sums of working capital. But here what we have to consider, here we are going to consider 5 to 6 things only. Here it is written in short. We will come back to these points at the end of this video to understand what the things are written over here. But simply again, what is working capital? That is amount which is required for daily routine expenses or amount which is required for daily routine transaction is considered as working capital. Gross working capital, that is total of your current assets or which generates cash transaction. Net working capital, that is simple formula current assets minus current liability, that is known as our working capital or net working capital. Here we have to calculate sums of working capital management. So let us firstly go with the formulae of working capital. Here which things are required? So have a look. For working capital management in current assets, we are going to consider raw material, work in process, finished goods, debtors, and whatever cash balance is going to be there in our question. So this 4 things are going to be considered in our current assets at the time of calculation. Then for the liabilities, we are going to consider creditors and outstanding expenses. These are the 2 things which are going to be considered for current liability. So 4 to 5 things
again material, work in process, finished goods, debtors, again with that cash or bank balance, whatever is given there in your question is considered. These all are the current assets. And which liability we have to consider? So two liabilities, creditors and outstanding expenses. So with this we have to calculate the formula of current assets minus current liability. So let us understand what is the formula of raw material. So see here, you can see that annual cost of raw material multiplied by raw material storage period. It is divided by either 365 days or 12 months or 52 weeks. Now you can see firstly a shortcut that in each and every formula it is divided with the same, either 365 days or 12 months or 52 weeks. You can see here also, and in other formula also division is with the same thing, that is 365 to 52 weeks. That means we have to consider only one thing. How we have to consider days or months or week, that fully depends on our question. Now if we are going to consider days, तो आंसर मिलेगा days में, and if we are going to consider months, तो आंसर will be in months, and if we are going to consider weeks, तो आंसर will be there in the weeks only. First of all, another shortcut giving, that is here certain storage periods are given for each and every formula. You can see here storage periods are given, means जिसका formula हम calculate करेंगे उसके storage period दिए हैं. You can check here, if we are going to calculate raw material, तो we have to go with the raw material storage period. If we are calculating work in process, तो here period of work in storage period is given. Then in the same way finished goods, तो finished goods, debtors, तो debtors period, creditors, तो creditors period, and if outstanding expenses are there, तो you have to go with the outstanding expenses storage period. So these two things are very short to remember for our formulae, 365 एंड स्टोरेज पीरियड. तो जिसकी फॉर्मूला गिनेंगे उसका हमें यहाँ पे स्टोरेज पीरियड लेना है, एंड दैट पीरियड विल बी प्रोवाइडेड इन आर क्वेश्चन. ये पीरियड है वो हमारे क्वेश्चन में दिए रहेंगे. नाउ व्हाट टू रिमेंबर फॉर दी कैलकुलेशन, तो दिस फर्स्ट थिंग्स आर टू बी रिमेंबर फॉर आर कैलकुलेशन. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस रॉ मटेरियल इन्वेंटरी. पहले हमें करना है, कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल. तो पहले हम रॉ मटेरियल लेंगे. तो जब रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं तब किसका कॉस्ट लेना है? एनुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. साल का जो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, दैट एनुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी कंसिडर्ड, मल्टीप्लाइड बाय स्टोरेज पीरियड, डिवाइडेड बाय दिस थिंग्स. Then number 2, if we talk about work in process inventory. work in process मतलब जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसका प्रोडक्शन चल रहा है, तो जिसके ऊपर काम चल रहा है दैट इज़ नोन एज योर वर्क इन प्रोसेस एंड दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन प्रोसीजर. तो यहाँ पे कौन सा लेना है? एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच वर्क इज़ गोइंग ऑन, जिसके ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसके ऊपर लगेगी प्रोडक्शन कॉस्ट. तो यहाँ पे एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन मल्टीप्लाइड बाय वर्क इन प्रोसेस स्टोरेज पीरियड. तो वो मैंने शॉर्टकट बता दिया, जिसका नाम है उसका स्टोरेज पीरियड लेना है, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 12 इंटू 52 वीक्स. फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स के लिए देखो गुड्स आपके बन गए हैं, मतलब आपको मार्केट में सेल करने हैं, तो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज टेकन ओवर हियर. गुड्स आर रेडी एंड दिस गुड्स आर टू बी सोल्ड इनटू द मार्केट, दैट्स वाई इट इज रिटन ओवर हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगेन मल्टीप्लाइड बाय स्टोरेज पीरियड डिवाइडेड बाय यू नो. Now when our debtor arises, when we do the credit sales, at that time debtor arises. So here we have to consider annual credit sales. debtor तभी होते हैं जब हम उधार पे बेचते हैं तब. तो सेल्स लेना है, क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय डेटर्स पीरियड डिवाइडेड बाय डेज, मंथ और वीक. When our creditor arises, when we purchase anything on credit basis. तो when we purchase anything on credit basis, at that time annual credit purchase
multiplied by creditors period divided by days, month or week. And for outstanding expenses, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसकी कॉस्ट लेनी है. वॉट एवर एक्सपेंसेस नेम विल बी गिवन, कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस टू बी कंसिडर्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टोरेज पीरियड डिवाइडेड बाय डेज, मंथ और week. So in this way these formulas are calculated for current assets and current liabilities value. Then that value जो आंसर मिलेंगे it is putted in this format. You can see here the format. तो see here you can see the format statement showing the requirement of working capital. ऐसा फॉर्मेट बनेगा particulars and rupees. And as we have seen the formula, हमने फॉर्मूला क्या देखी, देखो current assets minus current liability. So जो भी वैल्यू हमने मटीरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स की जो भी ली, जो भी फॉर्मूला के ऊपर से आंसर मिले, दैट आंसर्स आर पुटेड ओवर हियर. तो देखो फर्स्ट आंसर हमने यहाँ पे हेडिंग रख दिया करंट एसेट्स. देन स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, वॉट एवर फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड ओवर हियर, इसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पे प्लेस करना है. तो वो आंसर यहाँ पे प्लेस करेंगे. देन स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस आपको जो भी आंसर मिलेगा, अगर अलग अलग दिया है मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा. तो ये अलग अलग ऊपर के सब वैल्यू के ऊपर काम होता है फॉर कॉस्ट रिडक्शन. तो वो सबका कैलकुलेशन करके टोटल करके यहाँ पे आंसर करेंगे. शॉर्टकट में याद रखो, जो भी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको प्लेस करना है. फिर हमने सीखा था फिनिश गुड्स. देखो पहले हमेशा मटेरियल आता है, मटेरियल के ऊपर प्रोडक्शन होता है, फिर वो मटेरियल आपका तैयार हो जाता है विच इज़ नोन एज योर फिनिश गुड्स. तो उसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे प्लेस करेंगे. उसके बाद डेटर्स आते हैं, तो डेटर्स का आंसर कैश, अगर आपको क्वेश्चन में दी है तो वो कैश रखेंगे, और कोई एडवांस पेमेंट दिया है तो एडवांस पेमेंट. ये दोनों का कैलकुलेशन नहीं होता है, सीधा दिया होता है क्वेश्चन में. तो एसेट्स के लिए याद रखो हमारी 5 चीज़ें होती हैं. पहले हम मटेरियल लेते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, फिर वो तैयार हो जाते हैं गुड्स, एंड दिस मटेरियल इज सोल्ड टू द पीपल आइदर ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस. उनको बेचते हैं तो उधार पे तो डेटर्स अराइज होते हैं, और अगर कैश में बेचते हैं तो वो कैश हमारे को मिल जाती है कैश. और अगर हम कोई एडवांस पेमेंट करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर करंट एसेट्स. ये सबका टोटल करना है विच इज़ नोन एज टोटल ए. दैन करंट लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ में जैसे मैंने आपको बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स. तो सी जो हमारा करंट लायबिलिटी का हेडिंग है वो रख देना है. फिर क्रेडिटर्स फॉर परचेज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एंड इफ एनी एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, अगर उनसे कुछ मिला है तो उन सब का टोटल करेंगे. दैट टोटल इज कंसिडर्ड एज आवर टोटल बी. फाइनली फॉर वर्किंग कैपिटल व्हाट वी हैव टू डू, ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ये करेंगे तो वर्किंग कैपिटल का आंसर हमें मिलेगा. नाउ एड कंटिंजेंसीज. कंटिंजेंसीज मतलब अगर कोई वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिया है वैल्यूज़, जिसको कंटिंजेंसी बोला जाएगा. फ्यूचर यू कैन से दैट लायबिलिटीज़ विच इज़ टू बी पेड, दैट इज़ नोन एज योर कंटिंजेंसीज. लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अगर होगा तो ही लिखेंगे, अदरवाइज उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. So this is what the format of your statement showing requirement of working capital. Now in your PDF I am going to send this format of cost sheet. अभी sometimes आपको ऐसा confusion होगा कि raw material consumption में क्या डालना है. तो this format is learned by you people in your first year. आपने ये फॉर्मेट सीखा था कॉस्ट शीट का. वो कॉस्ट शीट में क्या था, ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो ईजीली यू कैन कैलकुलेट योर COGS, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको इजीली मिलेगा. ठीक है. तो देखो हम पहले क्या प्लेस करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके कॉस्ट शीट में. रॉ मटेरियल में फिर आप क्या प्लस करते थे, परचेज, फिर प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है. अगेन रिपीटिंग, दिस इज लर्न बाय यू इन योर फर्स्ट ईयर.
ये सबका प्लस करो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इसमें दो एक्सपेंसेस आप प्लस करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट वेजेस। इसको प्लस करो तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलता था, प्राइम कॉस्ट। फिर वो प्राइम कॉस्ट में आप लोग फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस हम करते थे माइनस। ये सबको प्लस माइनस करें तो क्या वैल्यू मिलती थी, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में फिर क्या ऐड करना है, ऑफिस, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये करें तो हमें मिलता है COGS। एंड उसमें हम सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस करें तो मिलता है टोटल कॉस्ट, एंड दैट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इफ इट गोज तो आपको मिलता है सेल्स। नाउ सी दिस फॉर्मेट इज ऑलरेडी लर्न बाय यू पीपल, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मेट, लेकिन एक ही चीज़ याद रखो, थोड़ी थोड़ी ही इसमें हम यूज़ करेंगे। अप टू दिस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम यूज़ करेंगे। अगर फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हैं, तो सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम क्या प्लस कर देंगे, क्वेश्चन में फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर हम उसमें प्लस करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस तो सीधा हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं होगा, तो समटाइम्स योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड COGS आर गोइंग टू रिमेन सेम। व्हाई? बिकॉज इन क्वेश्चन दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड COGS, तो समटाइम्स इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। एंड फिर उसमें अगर सेलिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा कॉस्ट, प्रॉफिट डालेंगे तो बन जाएगा सेल्स। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें, कौन सी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस नंबर 1, फिर हमें चाहिए नंबर 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर हमें नंबर 3 चाहिए COGS, और फिर हमें चाहिए सेल्स, या तो क्रेडिट पे या तो कैश पे। तो ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर आवर कैलकुलेशन। तो ये फॉर्मेट आप इसको रिमाइंड कर देना, लिख देना, और मैं PDF भी सेंड कर दूँगी। Okay, so here we are just concluding with the formula and format of the working capital. In next video, we will learn the sums of working capital. So till then, stay tuned. Goodbye.